Namaskar. Today we are going to deal in concept of interest in partnership account, and in partnership account we will deal two type of interest: interest on capital and second interest on drawing. So before we start with these two, interest on capital and interest on drawing, we need to understand some concepts of some basic concepts of interest on calculation. First, time period. Second, rate of interest. Because we know that interest on rate of interest and time period are required to calculate interest on some amount. Time period is that time limit for which a particular amount is used, right? It may be in month or it may be in years, depending upon the questions information in the question, whether the time is given in month or time is given in years. We need to adjust according to that. Second, rate normally is given in percentage. रेट दो तरीके से हो सकती है क्वेश्चन के अंदर. इट मे बी विद टाइम टैग लाइक 10% per annum. See this, 10% per annum. Per annum is actually a time tag over rate of interest, right? And it may be without time tag, simple 10%, and there is no time tag. Next, relationship between time period and time rate of interest. If rate of interest is given in accordance of time factor, means अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे टाइम टैग लिखा हुआ है 10% पर annum, 8% पर annum, then we need to take care about the time period and we need to synchronize time period according to the time tag of the interest rate. Means अगर टाइम आपको मंथ में दे रखा है 12 मंथ तो या 9 मंथ, तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा पर अनम क्राइटेरिया में. रेट के पीछे जो टाइम टैग दे रखा पर अनम, वी नीड टू चेंज दैट टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर ए कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 2 लाख ऑन 31st मई 2019. 31 मई को पैसा इन्वेस्ट किया है ए ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज विद टाइम टैग 10% पर annum, right? Let's see, let it be the timeline which start from 1st April 2019 and ends at 31st March 2020, and it is the total period of 12 months. It is the complete accounting period, right? But A has invested 2 lakh on 31st May 2019. अब पैसा कब लगाया उसने? 31 मई 2019. 31 मई 2019 से लेके, जैसा हमने बताया था कि टाइम पीरियड इज द एसेंस. टाइम पीरियड जिस टाइम के लिए अमाउंट यूज हुई है, 31 मई से लेके 31 मार्च तक, इट इज दिस इज द टाइम पीरियड फॉर विच A's capital is being used in business, right? And this period is of 10 months. Getting the point? This period is of 10 months. So we need to allow interest on capital 2 lakh for 10 months only, because this amount is being used for 10 months, and interest rate is with time tag per annum. Now see, 10 मंथ है, कन्वर्ट करने के लिए, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट विद 12. सी, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इज टोटल कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 10 मंथ. उसका पैसा 10 महीने के लिए बिजनेस में यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 टू कन्वर्ट द 10 मंथ इनटू ईयर, बिकॉज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर annum. And the calculation is interest is 16,666.67. I hope you are able to understand this. Now see second,
where rate of interest is given without time tag. Now see the question. सेम क्वेश्चन, मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 लाख ऑन 31 मई, 10 महीने उसका पैसा यूज हुआ है बिजनेस में, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल इज विदाउट टाइम टैग 10% ओनली. देयर इज नो टाइम टैग ऑफ पर annum. So in this situation we will ignore the time period for which amount is being used. We will simply calculate interest on his capital, total capital, rate of interest divided by 100. We will ignore the time period. You know, we need to ignore the time period if rate of interest is without time tag. Without time tag we have 10% without the tag of per annum. So in this situation interest will be 2 lakh into 10 by 100, it is 20,000. So with these two situations we are able to understand if the rate of interest in the question is without time tag, then we will ignore the time period and we will simply calculate interest by multiplying rate with the amount. Next, interest on capital. Interest on capital. I hope you are able to understand time period and rate of interest and calculation of interest in two situations where rate of interest is given without time tag and with time tag. Interest on capital. Let's understand this example. ABR partner sharing profit in 4/3. Their partnership deed provides that interest on capital is to be provided 12% per annum. Now understand, rate of interest is with time tag per annum. Is that clear? So rate of interest is with time tag. Now we need to find out the time period for which amount is being used. As initial capital on 1st April 2019 was 2,50,000 and he contributed rupees 1 lakh on 1st October 19 and rupees 50,000 on 1st January 2020. एक ही इनिशियल कैपिटल थी 2.5 लाख रुपया, उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया और लगा दिया और 1 जनवरी को 50,000 रुपया और बिजनेस में लगाया. Another partner B's initial capital was 3,50,000 and he contributed 1,50,000 on 1st July and 50,000 on 1st December, right? We will calculate the interest on capital of A and B both. Now understand the terminology of calculating interest. First, on 1st April 19, A's capital is 2,50,000 as it is being given in the question. A की 1 अप्रैल को पैसा कितना था? 2.5 लाख रुपया उसकी कैपिटल थी. अब 1 अप्रैल को ये कैपिटल थी, उसने 1 अक्टूबर को मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, 6 महीने के लिए 6 month after 6 month on 1st October 19 उसने 1 लाख रुपया कैपिटल और लगाई. मतलब 1 अक्टूबर 2019 को उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? पहले 2,50,000 थी प्लस 1 लाख. On 1st October 19 his capital becomes 3,50,000, right? अब उसने 1 जनवरी 2020 को 50,000 रुपया और लगाया. मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. After 3 months on 1st January 2020 his capital becomes, अब 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल 3.5 लाख रुपए थी, उसने 50,000 रुपया और ऐड कर दिया and on this date his capital becomes 4 lakh. Is that clear? 3 महीने बाद there was a date of end of the year 31st March 20. So this is the terminology of A's contribution in the business.
ए की स्टार्टिंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए थी, 6 महीने बाद उसने 1 लाख रुपए और लगाया तो उसकी कैपिटल 3.5 लाख रुपए होगी। 3.5 लाख में 3 महीने बाद उसने 1 जनवरी 2020 को 50,000 रुपए और इन्वेस्ट किया, दैट कैपिटल बिकम्स 4 लाख। नाउ सी 2.5 लाख रुपया 6 महीने के लिए यूज हुआ बिजनेस में, इज दैट क्लियर? ऑन 1 अप्रैल 19 हिज कैपिटल वाज 2,50,000 और 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया और लगाया था, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 मंथ तक उसकी कैपिटल बिजनेस में यूज हुई 2,50,000। तो इस अमाउंट पे 2.5 लाख रुपए पे वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। फॉर्मूला क्या था हमारा? कैपिटल इनटू टाइम इनटू रेट। अब टाइम को हमें कन्वर्ट भी करना है, डिवाइड बाय 12, अमाउंट बिकम्स 15,000। मतलब फर्स्ट 6 मंथ में एक ही जो कैपिटल इन्वेस्टेड थी 2.5 लाख, उस पे इंटरेस्ट बना 15,000। इसी तरीके से नेक्स्ट ₹3,50,000 आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 लाख, capital become 3,50,000 and that amount is being used for 3 months. So interest will be 3,50,000 into 3 means time, into 12 means rate, divided by 112. The interest is calculated 10,500. Next, this 4 lakh rupees is being used for 3 months. Is that clear? And for 3 months we are going to use 4 lakh rupees. The calculation of interest will be 4 lakh into 3 into 12 divided by 100 into 12 and interest will be 12,000. पहले 6 महीने में एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट था 15,000, दूसरे 6 महीने अगले 3 महीने पे इंटरेस्ट था 10,500 और अगले लास्ट 3 मंथ पे उसका इंटरेस्ट आया 12,000। ये 2.5 लाख रुपए जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसको इट इज टू बी 4 लाख रुपीज। आई होप यू विल एडजस्ट दिस। तो 3 ये इंटरेस्ट हुए, तो उसका टोटल इंटरेस्ट जो साल का बना दैट विल बी द सम टोटल ऑफ दीज 3, 15,000 प्लस 10,500 प्लस 12,000 एंड द टोटल इंटरेस्ट विल बी 37,500. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। अब इसी इंटरेस्ट को एक सिंपल मेथड एक और है उससे कैलकुलेट करने का यूज करते हैं हम। देखो अगर हम तीनों को टोटल करें तो रेट मींस दिस 12 एंड 100 बाय 12, दिस विल बी द कॉमन थिंग इन दीज 3। तो इसको एडजस्ट करने के लिए वी कैन डेवलप अनदर फॉर्मूला, अनदर सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, दैट इज पहली अमाउंट 2.5 लाख 6 महीने के लिए यूज हुई है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल 15 लाख। अगले 3.5 लाख रुपया यूज हुआ है 3 महीने के लिए, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, इट बिकम 10,50,000। अगला 4 लाख रुपया यूज हुआ 3 महीने के लिए, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3। बाय दिस वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट 1 मंथ इक्वल अमाउंट। मतलब हर अमाउंट जो जितने महीने के लिए यूज हुई है उससे मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका टोटल करें देन वी विल हैव एन अमाउंट ऑन विच 1 मंथ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू दिस। So by this way we can calculate 1 month interest over this amount 37,50,000. It will be 37,500 quite equal to this amount. यही हमने पहले मेथड से निकाला था। So students are supposed to use this second method, means multiply the amount and the month for which that amount is being used, and after all total that amount it will be 1 month equal amount, means interest of 1 month over this amount will be equal to the separate total of separate interest over these amount. Now we will calculate interest on B's capital directly with this method. Okay, interest on B's capital.
बी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल है 3,50,000 रुपया। उसका अगला कंट्रीब्यूशन आया है 1/7 को, 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने के लिए उसकी अमाउंट यूज हुई है 3.5 लाख रुपया। सो वी विल मल्टीप्लाई 3,50,000 बाय 3, राइट। अब 1 जुलाई को उसने 1.5 लाख रुपया और दे दिया, तो कैपिटल उसकी बन गई थी 5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया शुरू में था, 1.5 लाख रुपया और लगा दिया, कैपिटल बिकम 5 लाख। एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ओवर दैट 5 लाख फॉर 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना हमें 5 लाख पे। वी विल मल्टीप्लाई 5 लाख बाई 5। नाउ आफ्टर 1st December the amount become 5,50,000 after this 50,000 contribution, and that amount is being used December, January, February, March, 4 महीने 5,50,000 रुपया यूज हुआ। तो 3 लाख रुपया, 3,50,000 रुपया 3 महीने यूज हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ, 10,50,000, 5 lakh used for 5 months, it is being multiplied by 5, 25 lakh, 5,50,000 used for 4 months, 22 lakh total. Now we are able to calculate 1 month equal amount, and that is 57,500. 57,500, it is the 1 month equal amount. Now we need to calculate interest over this amount for 1 month, and it will be 57,500. This is the total calculation of interest on B's capital. I hope you are able to understand calculation of interest on capital. Now, before we go to the next topic of interest on drawing, we need to introduce another concept with the name average period. It is highly required for calculation of interest on drawing. What is average period? This concept works when a set amount, not it, a set amount is being withdrawn in set interval during a period. In 1 year as per 12th class syllabus. इसका मतलब क्या है कि एवरेज पीरियड कंसेप्ट उस टाइम यूज हो सकती है जब एक सेट अमाउंट, लेट इट बी 5,000, इस एग्जांपल को देखो, मिस्टर ए विड्रॉज 2,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ए ने 2,000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को, पहले दिन पैसा निकलवाया है। कितना? 2,000 रुपया। मतलब पहली अमाउंट उसने निकलवाई 1 जनवरी को, सॉरी 1 अप्रैल को। अगर अकाउंटिंग पीरियड उनका एंड होता 31 मार्च को, तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ विल बी 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। दिस वे ही हैज withdrawn for 12 months on first day of each period. Here in this example we have a set amount, not it, a set amount 2,000 withdrawn on set interval, मतलब हर महीने निकलवाई गई है, right? For a period means for the whole year it is being withdrawn, and rate of interest is with time tag per annum. अगर ये 3 सिचुएशन पूरी होती हैं तब अकाउंट एवरेज पीरियड काम करता है। एवरेज पीरियड विल वर्क वेयर अ सेट अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन अ सेट डे, सेट इंटरवल फॉर अ पीरियड, एंड इंटरेस्ट रेट मस्ट बी विद टाइम टैग। इस क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी देखते हैं एक बार। हमारी टाइमलाइन 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को खत्म होती है, और उसने पहले ड्राइंग भी कब करी है? 2,000 रुपया फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मींस 1 अप्रैल को ही ड्राइंग करी होगी। तो जो ड्राइंग उसने 1 अप्रैल 2019 को करी है उसके ऊपर तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 12 मंथ, राइट। नेक्स्ट उसने 1 मई को करी है, बिकॉज ही हैज विथड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 1 मई को उसने विड्रॉ करी। तो 1 मई से लेके एंड ऑफ द ईयर
It is a period of 11 month. Next drawing is on 1st June and the time period is 10 month. This way 1st जुलाई को 9 मंथ, ये टाइम पीरियड रहेगा। 1st जुलाई को 9 महीने का, 1 अगस्त को 8 महीने का, 1 सितंबर को 9 मंथ का, 1 अक्टूबर को 6 महीने का। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर ईच ड्राइंग ऑन ईच मंथ। अब एवरेज पीरियड क्या होता है? it may be simply calculated with the help of this formula. Average period is equal to interest period on first installment and interest period on last installment. इन दोनों को जोड़ के we will divide by 2. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 12 मंथ इंटरेस्ट बन रहा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 1 मंथ बन रहा है। इन दिस सिचुएशन, इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सिचुएशन, वी कैन कैलकुलेट एवरेज पीरियड लाइक दिस। एवरेज पीरियड इज 12 फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 1 divided by 2 and the average period is 6.5 month. मीन्स अगर हम इस टोटल ड्राइंग के ऊपर 6.5 महीने का ब्याज निकाल दें, दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन होल ड्राइंग। कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड निकलने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है? हर महीने 2000 कर रहा है, तो 12 महीने में कितनी ड्राइंग करी होगी उसने? टोटल एनुअल ड्राइंग कितनी बनेगी उसकी? 2000 इंटू 12, इट विल बी 24,000 into rate is 10% per annum and into 6.5, it is average period divided by 12. Why we are dividing by 12? Because we have a average period in month and we need to convert this according to the time tag of the rate per annum. So divided by 12, our interest will be 1300. So I hope you are able to understand the average period. Average period can simply be calculated interest period on first installment plus interest period on last installment divided by 2. हमें ये पता होना चाहिए कि जब इंस्टॉलमेंट्स में ड्राइंग हो रही है तो पहली इंस्टॉलमेंट कब करी गई है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब करी गई है। पहले इंस्टॉलमेंट पे जितने महीने का ब्याज बनता है वो नंबर ऑफ मंथ प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का बनता वो, एंड द टोटल इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2 एंड इन दिस सिचुएशन 12 plus 1 is equal to 6.5. It is our average period. Now interest on drawing. Interest on drawing is being calculated in 3 situations. Monthly drawing, it may be on first day of each month, it may be on last day of each month, it may be on middle day of each month, means 15th of every month. There may be quarterly drawing. Again, quarterly drawing may be on first day of each quarter, it may be on last day of each quarter, it may be on middle day of each quarter, and third, it may be random drawing. We are not going to deal with random drawing in this video. We will deal only monthly drawing and quarterly drawing. And monthly drawing, there are 3 situations: on first day of each month, on last day of each month, on middle day of each month. Quarterly drawing के बारे में भी यही है, on first day of each quarter, on last day of each quarter and middle day of each quarter. ये तो 6 सिचुएशन हैं। ये 6 सिचुएशन उसी कंसेप्ट में काम करती हैं जिस कंसेप्ट में हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। सेट अमाउंट विड्रॉन होनी चाहिए, लाइक 5000 ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, 3000 विड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। सेट अमाउंट होनी चाहिए, रेट विद टैग ऑफ टाइम होनी चाहिए, सेट इंटरवल होना चाहिए। ओनली इन दैट सिचुएशन average period will work.
Let's deal with one by one. Monthly drawing. First situation, first day of each month, last day of each month and middle day of each month. Now check it. एवरेज पीरियड कैसे निकाला था? पहले इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का ब्याज प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का ब्याज डिवाइड बाय 2. दिस वाज द फॉर्मूला. एवरेज पीरियड फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हम निकाल चुके हैं. क्या था? 12 प्लस 1. पहले इंस्टॉलमेंट पे 12 महीने का ब्याज था. हमारा एवरेज पीरियड कितना आ गया था? 6.5. लास्ट डे है तो क्या होगा? पहले इंस्टॉलमेंट आपने 30 अप्रैल को करी होगी, तो पहले इंस्टॉलमेंट पे आपका कितना ब्याज बनेगा? 11 महीने का ब्याज बनेगा. और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने 31 मार्च को ही करी है, और 31 मार्च को ही आप कैलकुलेट कर ले हो. देयर इज नो इंटरेस्ट ओवर दैट लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो 0, एंड आवर एवरेज पीरियड विल बी 5.5. मिडिल डे ऑफ ईच मंथ. मिडिल डे ऑफ ईच मंथ मतलब 15 अप्रैल को आपने किया तो 11.5 महीने का ब्याज बनेगा उसका. और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने 15 मार्च को करी होगी तो 15 दिन का ब्याज मींस हाफ मंथ. दिस एंड योर एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ. इज दैट क्लियर? 6 मंथ. अब तीनों सिचुएशंस को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ABC are 3 partner in a firm. They did provide 8% interest per annum, right? A withdraws 9,000 on first day of each month. 9,000 रुपया पर मंथ वो पैसा निकलवाता है पर मंथ. तो टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई? 12 into 9, 1 lakh. Interest on age drawing is total annual drawing into rate into average period divide by 100 into 12. टोटल अमाउंट कितनी बनती है उनकी? 9,000 into 12. रेट उनकी 8% है. फर्स्ट सिचुएशन में आपका एवरेज पीरियड 6.5 है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4,680. आई होप you are able to understand this. Now second, B withdraws 6,000 on last day of each month. अब ये लास्ट डे ऑफ ईच मंथ कर रहा है, तो एवरेज पीरियड आपका क्या है लास्ट डे के लिए? 5.5. योर इंटरेस्ट विल बी टोटल ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 into 12. 6,000 दिस अमाउंट into 12, क्योंकि 12 महीने तक टोटल ड्रॉइंग लेनी है हमें, into 8 rate of interest, average period 5.5 क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, and the interest is 2,640. Let's see the third case. It is C withdraws 5,000 on middle day of each month. अब मिडिल डे में आपका एवरेज पीरियड कितना है? 6 मंथ. इंटरेस्ट विल बी टोटल ड्रॉइंग 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 महीने तक 5,000 रुपया निकलवाया तो टोटल ड्रॉइंग उसकी 60,000 रुपया बनेगी. इंटरेस्ट विल बी 5,000 into 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% into 6 and interest will be 2,400. I hope you are able to understand these 3 concepts. When monthly drawing is on first day, when monthly drawing is on last day, and when monthly drawing is on middle day of each month. Remember, there will be 6.5 month average period if drawing is on first day of each month. There will be average period 5.5 month if drawing is on last day of each month, and there will be average period of 6 month if drawing is withdrawn on first or on middle day of each month, right? Now quarterly drawing on first day of each quarter, on last day of each quarter, on middle day of each quarter. I hope all the students are able to understand the concept of quarter. Quarter means 1/4. 1/4 means period of 3 month. 12 महीने में 4 क्वार्टर बनेंगे और चारों क्वार्टर्स के लिए एवरेज पीरियड हम ऐसे ही निकालेंगे. पहले इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का ब्याज प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने के बाद डिवाइड बाय 2. Now see the concept of quarter.
फर्स्ट क्वार्टर विल स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 19 एंड एंड्स ऑन 36/19। 3 महीने का सेट है ये। अगला क्वार्टर 1 जुलाई को स्टार्ट होगा, 30 सितंबर को खत्म होगा, ये अगले 3 महीने का सेट है। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा, दिस इज थर्ड क्वार्टर। एंड फर्स्ट जनवरी को फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा और 31 को क्वार्टर बंद हो जाएगा, 31 मार्च 20 को। तो ये 4 क्वार्टर का सेट है। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर का पहला दिन 1 अप्रैल, दूसरे क्वार्टर का पहला दिन 1 जुलाई, तीसरे क्वार्टर का पहला दिन 1 अक्टूबर और चौथे क्वार्टर का फर्स्ट डे ऑन 1 जनवरी। इसी तरह पहले क्वार्टर का लास्ट डे कब बनता है? 30 जून को। दूसरे क्वार्टर का लास्ट डे बनता है 30 सितंबर को। तीसरे क्वार्टर का लास्ट डे 31 दिसंबर को बनता है और चौथे क्वार्टर का लास्ट डे बनता है 31 मार्च को। नाउ सी, इफ ड्राइंग इज ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर के पहले दिन क्या है? दिस डेट, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। 12 महीने का ब्याज बनेगा यहां से लेके, अगर आप इस डेट से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का देखोगे तो देयर विल बी इंटरेस्ट ओवर दिस अमाउंट फॉर 12 मंथ। तो पहले इंस्टॉलमेंट पे हमारा ब्याज कितना बन रहा है? 12 महीने का। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना ब्याज बन रहा है? 9 मंथ का। तीसरे क्वार्टर के पहले दिन ड्रॉइंग होती है तो उस पे इंटरेस्ट बन रहा है आपका 6 महीने का। और चौथे क्वार्टर के फर्स्ट डे इंटरेस्ट बन रहा है 3 मंथ का। नाउ सी, फॉर्मूला क्या था हमारा एवरेज पीरियड के लिए? पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का ब्याज है? 12 महीने, प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का ब्याज है? 3 महीने। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी योर एवरेज पीरियड। मींस 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, it is 7.5 month. It is your average period if drawing is on first day of each quarter. Similarly, you can check this last day of first quarter. अगर इस दिन ड्राइंग होती है तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 9 महीने का। सेकेंड क्वार्टर के लास्ट में 6 महीने, थर्ड क्वार्टर के लास्ट में 3 month, and on the last day of fourth quarter there will be no interest, 0 month. अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? पहले इंस्टॉलमेंट पे कितना ब्याज है? 9 मंथ के लिए, और लास्ट पे कितना है? 0। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, and average period will be 4.5 month. Means if the drawing is on last day of each quarter, then the average period will be 4.5 month. By this way, middle day 1.5 महीना कम हो गया, 10.5 मंथ का ब्याज मिलेगा इस पे 7.5 महीने का, थर्ड 4.5 महीने का, और लास्ट पे 1.5 महीने का। तो आपका एवरेज पीरियड इस सिचुएशन में क्या बनेगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, एंड इट इज 10.5 प्लस 1.2 डिवाइड बाय 2, इट इज इक्वल टू 6 मंथ। 10.5 जमा 1.5 डिवाइड बाय 2, 6 महीने। You need to remember these average period. Last day of first day of each quarter है तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 7.5 महीने। अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, ईच क्वार्टर है, तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 4.5 महीने, और मिडिल डे ऑफ ईच मंथ है, देन योर एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। ABCR partner and their deed provide 8% per annum interest. A withdraws 12,000 on first day of each quarter. फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट
इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 इंटू 12। अब टोटल एनुअल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? 12,000 रुपया पर क्वार्टर करी है उसने ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 12,000 इंटू 4, क्योंकि 12,000 रुपये उसने 4 बार ही निकलवाए होंगे हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को, तो साल में 4 बार ड्राइंग हुई है। 12,000 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7.5 एंड इंटरेस्ट विल बी 2,400, 2,400। Second situation, where B has withdrawn rupees 15,000 on last day of each quarter. B ने 15,000 रुपया लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर निकले हैं और लास्ट डे के लिए हमारा एवरेज पीरियड है 4.5 महीने। इंटरेस्ट इज टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी? क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है तो साल में 4 बार हुई होगी। 15,000 गुना 4, एक रेट 4.5 एवरेज पीरियड एंड द अमाउंट विल बी 1,800, 1,800। Third situation, C withdraws rupees 9,000 on middle day of each quarter. Interest, total drawing, rate into average period, और आपका मिडिल डे के लिए एवरेज पीरियड है 6 मंथ। 9,000 into 4, क्योंकि 4 बार ही ड्राइंग करी गई है, एंड योर इंटरेस्ट विल बी 3,240। Now we comes to an end of this video. I hope all of you are able to understand, and again I want to repeat that you need to check every illustration from NCERT book regarding these two concepts: calculation of interest on capital, calculation of interest on drawing. Thanks a lot. Enjoy your remaining day.